दैट इफ़ योर कर्मा इज़ सो इम्पॉर्टेंट और जो जो नसीब में होने वाला है वो होके रहेगा. सो हाउ इज़ वास्तु और न्यूमरोलॉजी कैन चेंज दैट? आप किससे शादी करोगे, कितनी बार शादी करोगे, कैसे बच्चे होंगे, कब होंगे, मैक्रो इवेंट्स ऑफ लाइफ. माइक्रो इवेंट्स ऑफ लाइफ आर नॉट डिसाइडेड. कि दादी भी कहती थी कि सिल्वर के ग्लास में पानी पिया करो. सो व्हाट इज़ दैट इम्पैक्ट? हाउ कैन यू इंक्लूड दैट इन योर लाइफ? मेटल ने हमेशा महलों को महल बनाया है. जब आप इसको घर में उतारते हैं तो आप मून की एनर्जी को लेकर आते हैं. यू ब्रिंग एंड बैलेंस अ प्लैनेट कॉल्ड मून. किड्स को किस एज में मेडिटेशन शुरू करनी चाहिए? 2 साल के बच्चे को. अच्छा. आई वुड से गर्भ संस्कार ये कहता है कि जब मदर प्रेग्नेंट हो तभी उसको मेडिटेशन बच्चे के अपने टमी पर हाथ रखकर बच्चे के लिए करनी चाहिए. According to you, what is the importance of a right guru? Guru is a happening. When it happens, you permanently and forever get transformed. Everyone love pets and people say कि अगर मेरे पास कुछ आ रहा था, मुझे प्रॉब्लम हो रहा था तो मेरे पेट ने वो अपने सर ले लिया. ये मैंने बहुत लोगों से सुना है. She's Sufi and she's very naughty. You're very naughty. Right? And like this one thinks कि मेरी पूरी बॉडी वीक है. इसको लगता ही नहीं है कि कुछ भी मेरे पास ऐसा है कि मैं मकाऊ नहीं हूँ. So I'm also मकाऊ for her. So welcome Dr. Jay Madan. The first thing I would love to ask you is, you wear so many hats. How do you manage all of that in 24 hours? It is about how well you utilize your time. I sleep for 4 to 4.5 hours a day. So I have good 18 working hours with me to the maximum of utility. So I think I get, thanks to all the meditations over the years, that I get 1/3 of more than what everybody else gets to work. So I think I've trained my brain to help you in that. Yeah, and I have, of course, we all follow you on social media, and you have a huge fan following. So, social media has become very instrumental in making people aware on lot of things. While it's used for entertainment, but it's also, helpful in infotainment. So, how do you see that as a platform to reach so many people? So I personally am not of a mindset of just being entertained. मुझे लगता है that बोरियत होने के लिए समय होना चाहिए, खाली समय, to entertain yourself. So I absolutely believe in edutainment. Even if it is a film, if I'm sitting on a flight and not doing anything much and I have to watch a film, I will only look at something that is bringing value to my life. Anything which is just adding nothing to my life, I'll not put my 2 hours, 3 hours, 3 minutes, 10 minutes, anything on it. And I think in today's time, people have so many options that they exactly know where they want to put their time across. So I feel social media has only helped us, not harmed us in any way. और जो लोग सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वो टाइम वेस्ट करते ही हैं लाइफ में. इट इज अबाउट योर पर्सनल बिहेवियर, वेदर यू आर ऑन अ सोशल मीडिया और इन योर पर्सनल लाइफ, यू आर ऑलवेज सेम. So, a lot of people from other countries are coming to India. They are, investing their time. They want to learn about meditation. So, how do you see that change over the years? I think with so much of stress, anxiety, and competition that the world and especially the youth is going through, meditation is the only answer. And I always tell to everyone that meditation and medication came from the same root. Just that medication is curative and meditation is preventive. अगर आप ये करोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप केटर करोगे आगे जाके लाइफ में, रिलेटेड टू स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, other psychosomatic issues that you can pick up. This can all be managed if you are a meditator. And, doctor, a lot of people are very curious about the fact, or they keep on discussing that if your karma is so important, और जो जो नसीब में होने वाला है वो होके रहेगा. So how is vastu or numerology can change that? देखिए, मैक्रो थिंग्स आर वेरी मच प्रीडिस्टाइंड इन द लाइफ, दैट आप किससे शादी करोगे, कितनी बार शादी करोगे, कैसे बच्चे होंगे, कब होंगे, मैक्रो इवेंट्स ऑफ लाइफ. माइक्रो इवेंट्स ऑफ लाइफ आर नॉट डिसाइडेड. आप इस घर में रहोगे, आप खुश रहोगे कि नहीं, दैट इज वास्तु. आप एक रिलेशनशिप में हो, योर हस्बैंड हैज 10 गुड क्वालिटीज एंड 2 बैड क्वालिटीज, आप वो 2 बुरी पकड़ के बैठे रहोगे और 10 अच्छी भूल जाओगे, इज माइक्रो इवेंट्स. सो इट हेल्प्स यू टू अपलिफ्ट योर एनर्जी, टू थिंक इन अ ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ एंड स्टे पॉजिटिव. है ना? इट इज क्वालिटी.
And you know the same thing. You have a beautiful house. I'm sure everyone tells you that, but I see a lot of silver around it. So what is the importance of silver? Because a lot of people, discuss gold a lot of times, but silver is an element. कि दादी भी कहती थी कि सिल्वर के ग्लास में पानी पिया करो. So what is that impact? How can you include that in your life? See, I believe that art is something that should first have meaning, and secondly, it should be appreciative. Now, looking at the gold and silver prices, अगर आप सिल्वर घर में रख रहे हो तो वो सुंदर तो लग ही रहा है और वो बैठे बैठे बढ़ भी रहा है. हर दिन उसका कॉस्ट बढ़ रहा है ना, हर 3 महीने बाद Correct. उसमें इन्फ्लेशन आ रहा है. एंड महलों में और हवेलियों में क्या फर्क होता था? ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टफ इनसाइड. एक हवेली भी बड़ी हो सकती है और महल भी छोटा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या है इज व्हाट मेक्स इट अ पैलेस. Silver is what has made palaces over the centuries, be it French, any other European, something more towards the Turkish or Indian. इस मेटल ने हमेशा महलों को महल बनाया है. तो जब आप इसको घर में उतारते हैं तो आप मून की एनर्जी को लेकर आते हैं. यू ब्रिंग एंड बैलेंस अ प्लैनेट कॉल्ड मून विच इज अबाउट इमोशनल बैलेंस. इसीलिए कहा जाता था कि चांदी के ग्लास में पानी पियो, सो दैट ये ठंडक तो देता ही है बॉडी को. इट हेल्प्स एंड क्रिएट्स योर इम्यूनिटी इन अ मच स्ट्रॉन्गर वे. इसीलिए आयुर्वेद में सोने की भस्म यूज होती है, मोती की भस्म यूज होती है, चांदी की भस्म यूज होती है. इट इज वेरी गुड टू कीप योर माइंड काम, योर बॉडी कूल, you in a relaxed state, and emotional balance it creates in a house. And how would Dr. Jay Madan define spirituality? So spirituality has nothing to do with religion. If you're ritualistic, you're religious, it's very good, but that's not being spiritual. Spiritual word came from a root of a word called spiritos, which means spirit. So if you are in the spirit, that means if you're in the present, spirit is what? Your breath. Yeah. Spiritos means your breath. So your breath, if you are with the breath, you are in the ritual of the breath, that means you're spiritual. तो अगर आप अपनी present में अभी हो, you know how to stay in your present, you're spiritual. It is not about you being meditative or you doing this or that karma. It means if you know how to be in present, you're spiritual. And what would you like to talk about water rituals? I mean, I have seen a lot of videos and people are still a little confused about what exactly it is. So, anything you would love to share with them? So every religion uses water, from Muslims to Christians to Buddhism to Sikh अमृत छकाते हैं, to Hindus, जल पिलाते हैं या जल में नहाते हैं. You will see water linked in every religion in some way or the other. Because it's the first element that you're closest to. Yeah. Life generated from water. Christianity believes that. Hinduism believes हमारे पहले अवतार थे मत्स्य अवतार, which is out of water. The baby, the womb, the child comes to your water bag. If water bag leaks, child has to come out. So life actually originates from water. That means जो पानी है उसको अब तो साइंस भी इस चीज को मानता है. फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैव कम टू अ कंक्लूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट अंडर माइन्यूटेस्ट माइक्रोस्कोपिक लेवल इज दैट पानी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं. आप उसको जैसी डायरेक्शन और अफर्मेशन देते हो वो स्प्रेड आउट हो जाता है या श्रिंक हो जाता है. इसीलिए लोग पानी के पास बैठ के पोइट्री करते हैं, लोग पानी के पास बैठ के ध्यान करते हैं. गंगा जी ऋषिकेश के पास आकर अलग वाइब्रेशन देती हैं, हरिद्वार में जाकर अलग वाइब्रेशन देती हैं, गंगोत्री पे अलग देती हैं. वही गंगा ऊपर से नीचे तक आते आते आपका भाव बदलती रहती है. क्योंकि ऋषिकेश में बहुत ऋषियों ने तपस्या की, हरिद्वार में कर्म कांड हुआ, गंगोत्री में तप हुआ, तो आप वैसा ही वहां जाकर फील करते हैं. तो जब पानी ही सब कुछ कर रहा है तो आपके घर में भी तो वही पानी है और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो. तो जब आप इसको अफर्मेशंस के साथ वीव कर देते हो, व्हेन यू पुट अफर्मेशंस ऑन द बॉटल, यू टच इट एंड pray, and then when you consume it, it changes everything in your body, in your cells, in your thinking pattern, in your neuron pattern, and that's the beauty of water. And what is aura, doctor? Because lot of people say मैं इसके घर गया था मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, या मैं किसी के घर गया और मेरा बहुत अच्छा वक्त बीत गया, पता ही नहीं चला 4 घंटे बिता लिए, और फिर कोई जवाब देता है कि अरे वो उसका ऑरा ही वैसा है. So what would you say about aura? So, जो हम महसूस करते हैं वो वाइब्रेशन है, और जो ऑरा होता है वो एक इंसान का होता है. ये कभी कभी बढ़ता है, कभी कभी घटता है, कभी कभी डिफरेंट कलर्स लेता है. ऐसे समझते हैं कि जब आप किसी सेंट या किसी गुरु या बड़े टीचर के पास जाते हैं तो वो आपसे बहुत दूर बैठे होते हैं स्टेज पे, वो तो आपको नहीं देख सकते, बट उनके होने से और उनको सुनने से क्या आपको बेहतर महसूस होता है?
they're not adding anything to your life, but you're filling and fulfilling yourself at that moment. तो जब किसी का आउटर स्फेयर, इसको मैं और सिंपल तरीके से समझाती हूँ. अगर आपके घर के बाहर कोई आदमी ऐसे बैठ जाए और सिर्फ आपके घर को देखता रहे, देखता रहे, देखता रहे, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो क्या आप पुलिस कंप्लेन करोगे? क्यों? Why would you do that? Because you will not feel safe, you'll feel something is. But you haven't bought the road, you haven't bought the True. air, and you haven't bought his eyes. पर क्योंकि आपको लग रहा है कि वो आपके घर को देख रहा है, तो आप अनईजी फील हो रहे हो. पर ना वो घर के अंदर आ रहा है और ना वो घर को छू रहा है, Correct. पर वो देख रहा है. ये आपके घर की और एक फील्ड है जो आपको फील होती है कि अगर मेरे घर के आसपास खड़े होके कोई मुझे देख रहा है तो मैं अनईजी हो जाऊंगी. ऐसे ही जब आप ट्रेन्स में, मेट्रोज में या टेम्पल्स में जाते हो, when somebody is very close to your body and they're not touching you also, you feel uneasy. Correct. That uneasy is because they are into your space. और जितना ज्यादा आपका बड़ा हो रहा होता है, उतना ज्यादा आप लोगों के पास आने से आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, या आप अपनी पसंद से लोगों के पास आना चाहते हैं. जैसे आप देखते हैं जब कोई सेलिब्रिटी क्रॉस करता है तो उनके आसपास PSOs होते हैं, वो लोगों को दूर से ही दूर करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे नीड एक्सपेंशन ऑफ देयर ऑरा दैट मच. पर जब किसी का ऑरा पॉजिटिव होता है तो आपको उसके पास बैठकर अच्छा लगता है. जब Correct. किसी का ऑरा नेगेटिव होता है तो इट इज जस्ट लाइक मॉस्किटो एंड फ्लाइज इन देयर सिस्टम. जैसे वो आपका खून पी रहे हैं और आपको इरिटेट कर रहे हैं, तो यू वांट टू बी अवे फ्रॉम देम. अभी हम पर होता है कि हम अपने ऑरा को कैसा करें. Correct. But is there any basic, things which जो हमें करनी चाहिए in daily life or, on any given day just to maintain that? Because today, with so many pressures that people are dealing with, and just not when they are working, even kids are going through a lot of pressure. So anything they can do कि 3 चीजें वो करनी चाहिए हमें. सबसे पहले रात को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि आज दिन में क्या बेस्ट हुआ और क्या बेस्ट नहीं हुआ. मैं गंदा नहीं बोलती हूँ, आई ट्राई एंड यूज वर्ड्स जिसमें खराब में भी अच्छा छिपा हो. तो क्या बेस्ट हुआ और क्या बेस्ट नहीं हुआ. जो बेस्ट नहीं हुआ उसमें क्या छूट गया और हम क्या कर सकते थे उसको बेटर करने के लिए. सो दैट द मोमेंट यू ट्रेन योर ब्रेन हाउ टू पिक फॉल्ट्स, डेसिफर इट एंड क्लीन इट फ्रॉम योर सिस्टम, वो और एफिशिएंटली काम करता है. Secondly, first is introspection. Secondly, it is very, very important to have a system of gratitude in your life. Because the moment gratitude becomes your attitude, your altitude changes. आपकी heights बदलना शुरू हो जाती हैं. क्योंकि हम manifestation लगभग 530-540 की फ्रीक्वेंसी पर होता है और ग्रैटिट्यूड इस 510 की फ्रीक्वेंसी पे. यानी कि मैनिफेस्टेशन के सबसे पास अगर कोई फीलिंग है जिसको आप जी सकते हो, जिसकी वजह से आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, इस ग्रैटिट्यूड. तो जब आप किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हो, दिल से थैंकफुल होते हो, तो वो चीजें और घटित होनी शुरू हो जाती हैं. बिकॉज ब्रेन को समझ में आ जाता है कि अरे ये मोमेंट तो बहुत ही अच्छा है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ, और वो ऐसी चीजें और ढूंढना शुरू कर देता है. द थर्ड थिंग इज दैट यू शुड नॉट होल्ड एंड सिट ऑन ग्रजेस फॉर लॉन्ग. Be it with your parents, your siblings, your friends. अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो या फोन करके क्लियर कर लो या फोन करके माफी मांग लो. The moment you remove everything which is heavy from your system, your personality becomes so light. And because you're a spiritual healer as well, I would love to ask you, I was talking to someone about gratitude and that person told me, लेकिन मुझे वो feel ही नहीं आ रहा. So do you think I'll fake it and it will work in my favor? So actually I had no answer to that. Sometimes you can fake it till you make it. साइंस ये कहती है कि अगर आप दुखी हो और आप 5 मिनट के लिए ऐसे हो जाते हो, फिर आप ऐसे हो जाते हो, तो आपके ब्रेन को ये लगने लगता है कि सब ठीक है क्योंकि मैं स्माइल कर रहा हूँ. सो मसल मेमोरी ऑल्सो हैज इट्स ओन पावर. सो समटाइम्स फेकिंग इट अप रेगुलरली एट रेगुलर इंटरवल्स ऑल्सो मेक इट हैपन. तो कोई बात नहीं, नाटक ही सही पर कर लो. तो वो स्टार्ट खराब नहीं है. बिल्कुल खराब नहीं. And doctor, I was doing a story, I was working on a story and I was talking to multiple parents only to realize that at a very young age, like their kids are around 4 or 5 years, but they want to implement astrology just to give them a better life, not to see कि ये engineer बनेगा कि doctor बनेगा, but they were eager to make those minor changes in their life, can be in form of astrology, vastu or anything. But I've seen that shift in parents' mindset. So what are the things you would love to tell them? I believe that it is a great science to guide you, to make you a higher version of yourself.
बट डोंट मेक इन एन एडिक्शन. जब जरूरत है तभी करना चाहिए. जब लगे एस्पिरेशन है और कुछ अटक रहा है तो जरूर करना चाहिए. सो इट हैज टू हैव अ पर्पस बिहाइंड इट. जस्ट यूजलेस चिटर चैट नेवर हेल्प्स एनीवन. सेकेंडली, इट इज जस्ट लाइक हाउ आयुर्वेदा इज. कोविड के टाइम पे हम सब ने कच्ची हल्दी खाई बिकॉज वी ब्रॉट इट इनटू आवर सिस्टम कि यार ये इम्यूनिटी को ठीक करती है, कितना विटामिन सी का पॉप खाएंगे, पिल खाएंगे. करेक्ट. Then we started having lemon juice, we started having amla, ashwagandha, things which are naturally better for your system and your immunity. Similarly, astrology is also a science that works better in your understanding, in your execution, in your mindset, in the matters of your luck, because it's an ever-evolving science that tells you or that guides you to change your pattern if you want to change anything. हम जो कर रहे हैं अगर हम वही करते रहेंगे तो हमें नया रिजल्ट कैसे आएगा? It only guides you कि अच्छा ऐसे भी सोच के देखो, अच्छा ऐसे भी करके देखो. And because of communicating with a person with who doesn't know you or has a neutral perspective about your life, you just feel अच्छा मैं यही तो सोच रहा था, पर आपको reassurance मिल जाती है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, like engine oil. दैट्स ट्रू. एंड किड्स को किस एज में मेडिटेशन शुरू करनी चाहिए? 2 साल के बच्चे को ही. अच्छा. आई वुड से गर्भ संस्कार ये कहता है कि जब मदर प्रेग्नेंट हो तभी उसको मेडिटेशन बच्चे के अपने टमी पर हाथ रखकर बच्चे के लिए करनी चाहिए. क्योंकि जब बच्चा आपके पेट में है तो आपकी हर एक ऑर्गन से कनेक्टेड है, इंक्लूडिंग योर ब्रेन एंड योर हार्ट. तो जब बच्चे को वो रिलैक्सेशन पैदा होने से पहले महसूस होने लग जाती है तो वो बड़ा होकर उस भाव को अपने आप ढूंढ लेता है. और जब बच्चा माँ बाप को ध्यान करते हुए देखता है तो वो भी ध्यान में उतरना शुरू हो जाता है. चिल्ड्रन डोंट लिसन टू यू, दे सी यू, दे ऑब्जर्व यू एंड दे अब्जॉर्ब यू लाइक अ स्पॉन्ज. वो सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं. आप जो सिखा रहे हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे हो इससे फर्क पड़ता है. यू कैन बिकम पेरेंट्स but you have to be a parent. Yeah, it's a very conscious choice that we make every day. I think it's also a daily investment in the terms of even as a parent. And you just mentioned about the chit chatter कि उसके लिए मत करो, do it with a purpose. So especially on social media, there are so many videos that are out and people follow them randomly, but it's so difficult to get the right guru. So according to you, what is the importance of a right guru? So there is a difference between guides and there's a difference between guru. Most of the people that we see around are our guides. They're not the gurus. Guru is a happening. When it happens, you permanently and forever get transformed. Yeah. Guides are as good as you're going to Taj Mahal. It's a beautiful place. आपको ना हिस्ट्री पता है ना आपको पता है वो पीछे के 2 पिलर इंक्लाइंड क्यों हैं. आपने किसी को हायर किया रिस्पेक्टफुली, आपने कहा मुझे ये समझा दो, उसको आपसे ज्यादा पता है, उसने पैसे लिए, समझाया एंड आप घर जाइए. अब आप वहीं तो नहीं बैठे रहोगे. और अगर आप रिसर्च कर रहे हो ताजमहल पर, आप उसमें और गहरा उतरना चाहते हो और आपको गाइड के साथ ट्यूनिंग बैठ गया तो आप 6 महीने लगा लोगे, साल लगा लोगे, बट अब ताजमहल में रहना तो नहीं शुरू कर दोगे. So one has to understand that people who help you evolve and grow can be mentors, can be guides. They are not necessarily a guru. A guru. So choose your people, your things and your emotion very wisely.